Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering. Subject: Electrical Measurement and Instrumentation. Measurement of errors. In practice, it is impossible to measure the exact value of the measurand. There is always some difference between the measured value and the absolute or true value of the unknown quantity, which may be very small or may be large. The difference between the true or exact value and the measured value of the unknown quantity is known as the absolute error of the measurement. इन प्रैक्टिकल हम जानते हैं कि यह इम्पॉसिबल है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल आ सके। उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ एरर्स होती हैं। कभी एरर्स कम होंगी, कभी एरर्स ज़्यादा होती हैं। तो मेजरमेंट में एरर्स फाइंड करने के लिए हमें एरर ऑफ मेजरमेंट करना पड़ता है। इफ del A be the absolute error of the measurement, AM and A be the measured and absolute value of the unknown quantity. Del A may be expressed as del A equal to AM minus A. Here del A is the absolute error and AM measured value and A absolute value. तो मेजर्ड वैल्यू में से एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें डेल ए मीन्स एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाता है। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। Relative errors epsilon r equal to del A upon capital A. Absolute errors upon true value is called relative error. When we find the percentage error, formula is epsilon naught upon AM into 100 और epsilon r into 100। epsilon r हमको रिलेटिव एरर्स इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। टाइप्स ऑफ एरर्स: ग्रॉस एरर्स, systematic errors and random errors. Types of errors are three types. First is gross errors, second is systematic error, third one is random error. Here we explain the systematic errors in this form. If value of measurement are not exact or not near to absolute value, but in every measurement value are same, is called systematic errors. Random errors
Random error means each and every measurement provide the different value of measurand. Measurand means a value which are measured is called measurand. Gross error. The error occur because of mistake in observed reading or using instruments and in recording and calculating measurement result. These errors usually occur because of human mistakes, and these may be of any magnitude and cannot be subjected to mathematical treatment. One common gross error is frequently committed during improper use of the measuring instrument. Gross error मेनली ऑब्जर्वर जो रीडिंग लेता है उसकी वजह से या इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करते टाइम पे या कैलकुलेट करने टाइम पे जो एरर्स होती हैं वह ग्रॉस एरर्स कहलाती हैं। मेनली ग्रॉस एरर्स को ह्यूमन मिस्टेक्स भी बोलते हैं। Here, errors will occur in the measurement result if proper zero setting are not there. हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट स्केल है, इस स्केल में पॉइंटर और जीरो एंड पॉइंटर दोनों के बीच डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सम अमाउंट से लैग ही मिलेगा। मीन्स इस इंस्ट्रूमेंट से कभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं मिल पाएगी। ये इंस्ट्रूमेंट एरर है। यहाँ पर ग्रॉस एरर्स विल अकर इन दी मेजरमेंट रिजल्ट इफ द पॉइंटर डिफ्लेक्ट बिटवीन द टू स्केलिंग पॉइंट्स। यहाँ पॉइंटर स्केलिंग पॉइंट्स मीन्स यहाँ और यहाँ पर जो बार लाइन है दोनों बार लाइन के बीच में है। अब वो थोड़ा सा पोजीशन से डिफ्लेक्ट है, एग्जैक्ट ना तो वो सेंटर में है ना ही किसी एक बार लाइन पर है, तो ये जो मेजरमेंट है ये भी आपको एरर्स ही देगा। नेक्स्ट वन, पैरेलल एरर विल अकर इन द मेजरमेंट रिजल्ट इफ द पॉइंटर इज नॉट सेट इन द वर्टिकल पोजीशन। जब हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू को मेजर करते हैं तब पॉइंटर और पॉइंटर से बनने वाली इमेज जो यहाँ पर पीछे उसकी परछाई बन रही है नीचे, पॉइंटर एंड पॉइंटर की इमेज दोनों पैरेलल होनी चाहिए। हम इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्कुल वर्टिकली देखें, ऊपर से देखें ताकि वो पैरेलल दिखें, फिर जो वैल्यू दिखेगी वो वैल्यू एग्जैक्ट होती है। बट सम टाइम हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तब भी हमें एरर्स मिलती है। सिस्टमैटिक एरर, दीज आर द एरर दैट रिमेन कांस्टेंट और चेंज अकॉर्डिंग टू अ डेफिनाइट लॉ on repeated measurement of the given quantity. These errors can be evaluated and their influence on the result of measurement can be eliminated by the introduction of proper correction. There are two types of systematic errors: instrumental error, environmental error. Instrumental error means
when instruments are manufactured on that manufacturing time, some instruments zero setting points and scale are not properly calibrated. And next one is environmental error. When we perform a practical and measure the value of current or voltage, surrounding of instrument affect the resultant value. Suppose other electromagnetic instruments are placed there, or surrounding temperature or pressure are changes. As we know that temperature affect the resistivity of conductors and semiconductor. So also value of current and voltage are not exact. They are also affected. Random errors. These errors are of variable magnitude and sign and do not maintain any law. The presence of random errors become evident when different results are obtained on repeated measurement of one and the same quantity. रैंडम एरर्स जब हम एक ही प्रैक्टिकल को या एक ही सर्किट में बार बार वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं और हर बार उसकी वैल्यू डिफरेंट मिले, तो ऐसे एरर्स कहलाते हैं रैंडम एरर. द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर्स इज मिनिमाइज्ड बाय मेजरिंग द गिवन क्वांटिटी many times under the same condition and calculating the arithmetical mean of the result obtained. तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए हमको अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा सभी वैल्यूज़ का. जितनी बार मेजरमेंट किया है उन सभी वैल्यूज़ का हमें अर्थमेटिकल मीन निकालना पड़ेगा. फिर जो रिजल्टेंट कैलकुलेटिंग वैल्यूज़ होगी वह उसका क्लोज टू एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी. लोडिंग इफेक्ट. Under practical condition, it has been observed that the introduction of any element in a system result invariably in extraction of the energy from the system, thereby distorting the original signal. This distortion may be take the form of attenuation, waveform distortion, phase shift, etc., and consequently the ideal measurement become impossible. The incapability of the system to faithfully measure the input signal in undistorted form is called loading effect. प्रैक्टिकली कंडीशन में देखा गया है कि जब इंस्ट्रूमेंट का यूज मेजरमेंट के लिए करते हैं उस टाइम इंस्ट्रूमेंट खुद कई बार लोड की तरह बिहेव करता है एंड कुछ एनर्जीज़ को कंज्यूम करता है और जो सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल है उस ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब कर देता है. यह कई बार लोडिंग के टाइम पर जब हम सर्किट में इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं तब ये प्रॉब्लम्स आती है. डिस्टॉर्शन में टेक द फॉर्म ऑफ एटेन्यूएशन. एटेन्यूएशन मीन्स वैल्यूज़ को कम कर देना, उसके लेवल को कम कर देना. तो वह इनपुट सिग्नल के लेवल को इंस्ट्रूमेंट्स अगर
खुद लोड की तरह बिहेव कर रहा है तो वह उस सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगा और उसकी वैल्यू को एटेन्यूएट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लोडिंग इफेक्ट की स्टडी करना पड़ती है। इससे वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन भी होता है, फेज शिफ्ट भी होता है और भी अलग अलग एरर्स आती हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। Which instruments we can say are good instruments? Such instruments require some properties. It should have a very high instrument efficiency. It should have a high sensitivity. The output of the instrument should be linearly proportional to the input. It should have a very low threshold. It should have lowest dead time. It should have perfect reproducibility precision. It should not have any drift. It should have minimum noise. ये सब चीज़ें हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए। All the indicating instruments require 3 important torque for their operations. जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम मेजरमेंट में यूज करते हैं, चाहे वो अमीटर हो, वोल्टमीटर और वाट मीटर और एनर्जी मीटर, all measuring instrument required 3 torque: deflecting torque Td, controlling torque Tc and damping torque Td. Without these torque, instrument cannot be performed. Deflecting torque. First one is deflecting torque. The deflecting torque is responsible for the movement of the pointer in proportion to the value of the measurand. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ही पॉइंटर मूव करता है, डिफ्लेक्ट करता है और मेजरेंड वैल्यू तक पहुंचता है। It is provided by the different effect of electric current on which the operation of the given instrument depend. Deflecting torque अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल की हेल्प से प्रोड्यूस होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर. It is very high at the null position of the pointer. When the pointer gets deflected due to the deflecting torque exert on it, the controlling torque provides the retarding torque and the two torques are equal at the equilibrium position of the 5-pointer. कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसके पोजीशन को कंट्रोल करता है एंड इट इज ऑल्सो परफॉर्म द रिटार्डिंग टॉर्क। यह रिटार्डिंग टॉर्क का भी काम करेगा। पॉइंटर को आफ्टर द परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल एंड remove the instrument from the circuit. After that पॉइंटर को वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर लाने के लिए भी कंट्रोलिंग टॉर्क काम करता है। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट्स में कंट्रोलिंग टॉर्क दो तरह से प्रोवाइड होता है। फर्स्ट वन इज स्प्रिंग, सेकेंड वन इज ग्रेविटी कंट्रोल।
This also ensures the zero setting of the pointer when the deflecting torque is absent. When deflecting torque is absent means जब इंस्ट्रूमेंट्स को सर्किट से रिमूव कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से इंस्ट्रूमेंट्स को रिमूव कर दिया गया मीन्स उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मीन्स उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एब्सेंट हो गया है। और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एब्सेंट हो जाए उस टाइम पर कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है कि पॉइंटर को जीरो सेटिंग पर लेकर आए, यह कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। नेक्स्ट वन इज डैम्पिंग टॉर्क। It provides the force required to damp out the oscillatory movement of the pointer। इसका मतलब है कि जब पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की हेल्प से आगे की डायरेक्शन में मूव करता है तो वह डैम्प होता है, वह कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं होता है, वह वहाँ पे डैम्प होता रहता है। तो उस डैम्पिंग को रोकने के लिए हमें एक अलग से डैम्पिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। इफ एनी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द सिस्टम द डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय एडी करंट, एयर फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन मेथड। These types of damping torque are applied in the electrical instruments for the purpose removing the damp or removing the oscillation in the pointer. Here a deflecting type instrument. This is the scale where pointer will be moved. This is north pole, south pole. This is a spring which provide the controlling torque, and here is the coil which provide the deflecting torque. When current is applied in the coil and this coil is placed between the magnetic field of magnet north pole and south pole, the resultant deflecting torque move the pointer from 0 to next one level. This is called deflecting torque which move the pointer, and when deflecting torque is 0 and pointer move back, this torque is applied by controlling torque and pointer give the value, absolute value without damping. This torque is provided by damping torque. Principles of operation and the effect they utilize are। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड हॉल इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर हो अगर उससे करंट फ्लो होता है तब उसके सराउंडिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। We now have a uniform magnetic field as shown in figure. Let the current carrying conductor be placed in this magnetic field.
सबसे फर्स्ट हमने एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हम जानते हैं कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक लाइन फ्लो होती हैं, एंड हेयर इट इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इस परमानेंट मैग्नेट की फील्ड के बीच में हमने इस कंडक्टर को पुट कर दिया, उसका रिजल्टेंट हमें यहाँ मिला ए नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एक कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया है, रख दिया है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनती है, जो कि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यही फोर्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है और ये प्रिंसिपल मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। थर्मल इफेक्ट द करंट टू मेजर्ड इज पास्ड थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट विच हीटेड। करंट जब एक स्मॉल एलिमेंट से पास होता है, कंडक्टर से पास होता है, तब करंट हीटिंग इफेक्ट की वजह से उस कंडक्टर को हीट कर देता है। तो टेम्परेचर राइज, कंडक्टर का टेम्परेचर राइज होगा। कन्वर्ट टू एन ईएमएफ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ बाय अ थर्मोकपल अटैच्ड टू द एलिमेंट। जब एलिमेंट से करंट फ्लो होगा और वह एलिमेंट थर्मोकपल के साथ अटैच है, तो वहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये इसका डायग्राम है। यहाँ पर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारा एक लाइन है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये हमारा थर्मोकपल है। थर्मोकपल के साथ में हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया हुआ है थर्मोकपल को, मतलब इसमें भी करंट फ्लो हो रहा होगा। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इस एलिमेंट को हीट करेगा। जब एलिमेंट हीट होगा तो थर्मोकपल यहाँ पर आपको एक ईएमएफ इंड्यूस करके देगा, प्लस और माइनस। यह इफेक्ट कहलाता है थर्मल इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट व्हेन टू प्लेट्स आर चार्ज्ड there is a force exerted between them. This force is used to move one of the plate. The instruments working on this principle are called electrostatic instruments, and they are usually voltmeter. हमारे पास दो प्लेट हैं, एक फिक्स्ड प्लेट, एक मूवेबल प्लेट। जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया दोनों प्लेट के बीच में, तो यूजिंग कैपेसिटर इफेक्ट दोनों प्लेट चार्ज हो जाएंगी, और फिक्स्ड प्लेट, मूविंग प्लेट एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होने की वजह से इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वजह से मूवेबल प्लेट मूव करेगी और उसका डिफ्लेक्शन हमें स्केल पर मिल जाएगा। यह कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। Induction effect when a non-magnetic conducting pivot disc or a drum is placed in a magnetic field produced by a system of electromagnet excited by alternating current, and EMF is induced in the disc or drum. As we know that induction effect are produced only alternating current, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ही इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन। यह आपकी फील्ड कॉइल या फिक्स्ड कॉइल बोलते हैं हम इसको। ये सप्लाई इनपुट है। ये मूविंग कॉइल आपको ये दिख रही है, ये मूविंग कॉइल है। यहाँ पर एक पॉइंटर, यहाँ ये स्केल। जैसे ही इस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस ईएमएफ की वजह से मूविंग कॉइल पर भी एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वह म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मेन ईएमएफ का अपोज करेगा। उस अपोजिशन के
रिजल्ट की वजह से पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा, और जब पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा तो हमें स्केल पर उसकी रीडिंग मिल जाएगी। हॉल इफेक्ट। If a strip of conducting material carries current in the presence of transverse magnetic field, an EMF is produced between two edges of conductor. The magnitude of the voltage depend upon the current, flux density and a property of conductor। हमें पता है जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी अपोजिट साइडों पर, अपोजिट फेस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। यह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना ही हॉल इफेक्ट कहलाता है। इस प्रिंसिपल का यूज भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। टाइप ऑफ सपोर्ट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स में जो मूविंग क्वाइल्स हैं या मूविंग आयरन्स हैं वो किस सपोर्ट्स पे काम करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइन रिबन शेप्ड मेटल फिलामेंट फॉर द अपर सस्पेंशन एंड अ क्वाइल ऑफ फाइन वायर फॉर द लोअर पार्ट। अपर पार्ट में हम रिबन होता है उससे बंधा हुआ होता है फिलामेंट, और लोअर सस्पेंशन, लोअर पार्ट के लिए हम फाइन वायर से हम सस्पेंड करते हैं। द रिबन इज मेड ऑफ स्प्रिंग मटेरियल। रिबन स्प्रिंग मटेरियल की बनी हुई होती है, लाइक बेरिलियम, कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्ज। दिस इज द डायग्राम। हियर अपर सस्पेंशन एंड दिस इज द लोअर सस्पेंशन। अपर सस्पेंशन एंड लोअर सस्पेंशन, इनकी हेल्प से ही क्वाइल मूव होती है और क्वाइल के साथ पॉइंटर लगा हुआ होता है, पॉइंटर मूव होता है। डॉट सस्पेंशन। A suspension type of instruments can only be used in vertical position। डॉट सस्पेंशन का यूज केवल वर्टिकल पोजिशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स में ही होता है। द डॉट सस्पेंशन हैज अ फ्लैट रिबन सस्पेंशन बोथ above and below the moving element with suspension kept under tension by a spring arrangement। This is a diagram। स्प्रिंग और इस साइड भी यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है। डॉट बैंड एक कॉइल है। जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो पॉइंटर मूव करता है और इसके लिए डॉट बैंड की हेल्प से यह मूवेबल होता है, मूव कर सकता है, मूव के लिए फ्री होता है। pivot and javel bearings। The moving system is mounted on a spindle made of hardened steel। The two ends of the spindle are made conical and then polished to form pivot। यहाँ आप देखिए, आपको एक ये स्पिंडल है, यह स्पिंडल एक पिवोट यहाँ दिख रहा है आपको, जिस पर वो लगा हुआ है स्पिंडल, एक पिवोट ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये केवल कांटेक्ट में है, परमानेंट कनेक्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ पर भी एक कॉइल मूव करने के लिए फ्री है। सपोर्ट्स का काम ही होता है कि वह कॉइल को सपोर्ट दे, पॉइंटर को सपोर्ट दे, स्पिंडल को सपोर्ट दे, बट वह फ्री टू मूव रहे, वह आराम से घूम सके, आराम से रोटेट हो सके। कंट्रोलिंग टॉर्क सिस्टम, स्प्रिंग कंट्रोल। अब कंट्रोलिंग सिस्टम फर्स्ट वन है, उसमें स्प्रिंग कंट्रोल। A hair spring usually of phosphor bronze attached to the moving system। It is used in indicating instruments for the controlling purpose। Controlling purpose means for achieving the controlling torque, we use the spring control। Here one spring and this is second spring, spring A, spring B, that provided the controlling torque
for the controlling purpose of pointer. Gravity control. Next one is, in a gravity control instrument, a small weight is attached to the moving system in such a way that it produces a restoring or controlling torque when the system is deflected. जब सिस्टम डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ आप देखिए कंट्रोल वेट और बैलेंस वेट। जब यह इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट नहीं होगा, उस टाइम पर कंट्रोल वेट बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स आर कनेक्टेड टू द सर्किट and due to electrical current, some magnetic field are produced between them, so a deflecting torque working on the pointer. जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो पॉइंटर पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर आगे जाएगा। जब पॉइंटर आगे जाएगा तो कंट्रोलिंग वेट भी मूव करेगा इस डायरेक्शन में। और आफ्टर जब सर्किट से इंस्ट्रूमेंट को हम रिमूव कर देंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा और ड्यू टू वेट पॉइंटर जीरो पोजीशन पर आ जाएगा और वेट कंट्रोल वेट फिर से परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाएगा। कंपैरिजन ऑफ स्प्रिंग एंड ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल हैज अ फॉलोइंग एडवांटेज when compared with the spring control. It is cheaper, independent of temperature, it does not deteriorate with time. Damping system. There are three systems of damping generally used. These are as follow: air friction, fluid friction, eddy current damping. Electromagnetic damping, एयर फ्रिक्शन। दिस इज द एयर फ्रिक्शन। यहाँ पर एक एयर चैम्बर होता है। एयर चैम्बर में यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। जब डैम्पिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर आगे जाता है तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की हेल्प से पॉइंटर स्मूथली आगे की ओर मूव करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। यहाँ पर फ्लूइड है, उसके बीच में ये डिस्क लगी हुई है और जब भी पॉइंटर मूव करेगा इस डिस्क को इस फ्लूइड के बीच में मूव करना पड़ेगा, जिससे यहाँ भी एक वो अलग से टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट वन इज एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग, ये डिस्क है। इस डिस्क में करंट की वजह से इस पर खुद का एक ईएमएफ होता है और यहाँ हमने एक नॉर्थ और साउथ की एक हमने डैम्पिंग मैग्नेट लगाई हुई है। जैसे ही डिस्क में करंट फ्लो होगा, डिस्क में एक ईएमएफ बनेगा और वह ईएमएफ इस मैग्नेट की फील्ड में मूव करेगा और इसका अपोज करेगा। यह अपोजिशन आपको डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। यहाँ पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक हमने एक परमानेंट मैग्नेट रखी हुई है यहाँ पर, साउथ नॉर्थ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाई हुई है इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मैग्नेट बनाई हुई है। परमानेंट मैग्नेट है यहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यह भी आपको इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग प्रोवाइड करवाएगा। अमीटर एंड वोल्टमीटर आर क्लासिफाइड एज फॉलो। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, परमानेंट मैग्नेट टाइप। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक और डायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स।
Moving iron type instruments further are classified into attraction type and repulsion type instruments. Next one is hot wire instruments. Next one, induction type instrument. Induction type instruments are classified split phase winding and shaded pole type instrument. Electrostatic type, permanent magnet instruments. Basic range of this instruments is 10 microampere to 100 microampere. Coil resistance is 10 ohm to 1 kilo ohm. Uses DC permanent magnet coil ammeter and voltmeter, AC permanent magnet coil ammeter and voltmeter with rectifier. जनरली PMMC इंस्ट्रूमेंट्स DC मेजरमेंट के लिए ही यूज होते हैं, बट रेक्टिफायर की हेल्प से हम AC मेजरमेंट भी कर सकते हैं. दिस इज द डायग्राम. नॉर्थ पोल, साउथ पोल, coil, mirror, lower suspension, upper suspension. यह परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट्स का डायग्राम है. ये वर्किंग है, हम इसको इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. नॉर्थ पोल और साउथ पोल की परमानेंट मैग्नेट की फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है. करंट कैरिंग कंडक्टर की खुद की एक फील्ड बनती है, और करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड एंड परमानेंट मैग्नेट की फील्ड उसके रिजल्टेंट फील्ड की वजह से, दोनों की रिजल्टेंट फील्ड की वजह से डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड होता है, और वह डैम्पिंग टॉर्क की वजह से कॉइल मूव करती है. यह कॉइल मूव करेगी. एडवांटेज ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट: सेंसिटिव टू स्मॉल करंट, वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल, uniform scale up to 270 degree, very effective built-in damping, low power consumptions, free from hysteresis loss and not affected by external field because its permanent magnet shield the coil from external magnetic field. Easily adopted as a multi-range instruments. हम PMMC इंस्ट्रूमेंट्स में सीरीज में या पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाकर हम उसकी करंट और वोल्टेज मेजरमेंट की रेंज को भी इंक्रीज कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट: दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ऑपरेटेड इन डायरेक्ट करंट ओनली. इन अल्टरनेटिंग करंट द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट ऑपरेट बिकॉज इन द पॉजिटिव हाफ द पॉइंटर एक्सपीरियंस अ फोर्स इन one direction and in the negative half the pointer experiences the force in the opposite direction. Due to the inertia of the pointer, it retains its zero position. The moving system is very delicate and can easily be damaged by rough handling. The coil being very fine cannot withstand prolonged overloading. It is costlier. The aging of the instrument. Moving iron type instruments, also we called MI type instruments. Basic range 10 milliampere to 100 ampere. Uses DC MI ammeter and voltmeter, AC MI and ammeter and voltmeter. हम MI टाइप इंस्ट्रूमेंट से DC मेजरमेंट एज वेल एज AC मेजरमेंट कर सकते हैं. मूविंग आयरन और MI इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड attraction type moving iron instrument and repulsion type moving iron instrument. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सन टाइप. रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस इज अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स. रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं एक कॉइल बनी हुई है बाहर साइड, एक आयरन वैन मतलब लोहे का एक वैन बना हुआ अंदर साइड. जब दोनों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वह एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे, और इसमें एक नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और दूसरे वैन में साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो यहाँ अट्रैक्शन
होगा इफ़ हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करें और ऐसा रखें कि एक वैन में नॉर्थ पोल आए और दूसरे वैन में भी नॉर्थ पोल आए, और अपोजिट साइड पर वहाँ साउथ पोल आए और अंदर वाले वैन में भी साउथ पोल आए, तो दोनों रिपल्सन फोर्स आएगा। रिपल्सन फोर्स की वजह से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट होगा। इसमें अट्रैक्शन टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल बनी हुई है, कॉइल है, और यहाँ पे बैलेंस वेट है, ये मूविंग आयरन है। जब कॉइल में करंट फ्लो होगा या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन को अट्रैक्ट करेगा। जब आयरन को अट्रैक्ट करेगा, आयरन आगे जाएगा तो ये पॉइंटर भी मूव करेगा। तो यह वर्किंग होती है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की। Advantage of MI type instruments: it robust construction and relatively cheap, suitable for measuring both DC and AC. It can withstand with overload. Disadvantage of MI type instruments: as the deflection is proportional to I2, hence the scale of the instrument is not uniform. It is cramped in the lower end and expanded in the upper portion. It is affected by stray magnetic field. Electrodynamometer type instrument. Electrodynamometer type is a transfer type instrument. A transfer type instrument is one that may be calibrated with a DC source and then used with modification to measure AC source. Means this type of instruments are calibrated with DC source and used on AC measurement. हम इनका यूज DC सोर्स से हम इनका कैलिब्रेट करते हैं और AC मेजरमेंट में इनका यूज करते हैं। This requires the transfer type instrument to have same accuracy for both DC and AC. इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में रिक्वायरमेंट होती है कि यह AC और DC दोनों पर सेम एक्यूरेसी पे काम करे। ये डायग्राम है इसमें। फिक्स्ड कॉइल का हाफ पोर्शन इस साइड है, हाफ पोर्शन इस साइड है, और यहाँ पर हमारी मूविंग कॉइल है, मूवेबल कॉइल है, और दोनों कॉइल यदि ये दिस अरेंजमेंट इज फॉर द अमीटर और करंट मेजरमेंट। यहाँ आप देखिए फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड हैं, और जैसे ही करंट फ्लो होगा ये आपको एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा और पॉइंटर आपको कैलिब्रेटेड स्केल पर रीडिंग देगा। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। Induction type instruments are used only for AC measurement and can be either as ammeter, voltmeter or wattmeter. However, the induction principle find its widest application as a watt-hour or energy meter. इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज अमीटर वोल्टमीटर में भी होता है और इसका यूज वाट आवर मीटर और एनर्जी मीटर में भी होता है। In such instruments, the deflecting torque is produced due to the reaction between the flux of an AC magnet and the eddy current induced by another flux. इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स ये डायग्राम है। यहाँ हमने AC सप्लाई, इसकी कॉइल हो गया फिक्स्ड कॉइल पे हमने AC सप्लाई दी, जिसकी हेल्प से यहाँ एक फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कोर में फ्लो होगा। अब ये जो फ्लक्स है वह फ्लक्स डिस्क पर भी जाएगा, तो डिस्क के ऊपर वह म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा, और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होने की वजह से वह ईएमएफ मेन ईएमएफ का अपोज करेगा। उस अपोजिशन से एक टॉर्क डेवलप होगा और वह टॉर्क आपको पॉइंटर के थ्रू
रीडिंग प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ एक डैम्पिंग मैग्नेट लगाई हुई है जो कि यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक डैम्पिंग है। Electrothermal instruments. Mainly there are two type of thermal instruments, hot wire type instruments and thermocouple instruments, है ना। thermocouple instruments, here photophosphor phosphor bronze wires are used। जब इस वायर से करंट फ्लो होगा तो ये वायर हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसमें टेंशन आएगा और सैग आएगा। जब करंट फ्लो होता है उस टाइम पर इसमें सैग होता है तो ये लूज हो जाएगा, और जब इससे करंट आना बंद हो जाएगा तो इसमें टेंशन आ जाएगा। तो दोनों की वजह से पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ आप देख रहे हैं हीटर, ये हीटिंग एलिमेंट है। यहाँ करंट की हेल्प से इस हीटिंग एलिमेंट में करंट फ्लो होगा और ये एलिमेंट हीट हो जाएगा। यहाँ ये थर्मोकपल है। थर्मोकपल का मतलब है हीटिंग इफेक्ट की वजह से वह आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब यहाँ पर आपको एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस करंट के कंपेरिजन में जितनी हीट होगी उसी हीट के रेशियो से यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस ईएमएफ को हम यहाँ पीएमएमसी मीटर से मेजर कर लेंगे। इस तरीके का मेजरमेंट कहलाता है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स। समराइज्ड chart are given here which provide the applications of different instruments. Moving coil type instruments, PMMC instruments, DC measurement and controlling type is spring, and damping is eddy current. And as specialty, it is most accurate type for DC measurement. Here dynamometer type instruments, DC or AC measurement, spring control, air friction, mainly used for wattmeter. Moving iron type instruments for DC and AC measurement, spring and gravity control, air friction. It is cheaper to manufacture and mostly used as indicating instruments. Electrostatic is DC or AC voltage only. Gravity or spring control, air friction. This instrument have very low power consumptions. Induction type, AC measurement, current, voltage, power and energy. Spring control, eddy current control. Ammeter, voltmeter of this type are expensive. Thermal, hot wire type instrument, DC or AC measurement, spring control, eddy current control. These instruments have same calibration for both AC and DC measurement. Thermocouple type, DC or AC measurement, not require spring or other controlling. These are free from errors due to frequency, waveform and external field. When used on AC are used for measurement of current and voltage. Rectifier type, DC or AC measurement, current and voltage measurement, spring control required. For damping, eddy current are required. These instruments are nothing but permanent magnet moving coil type instruments. रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप में कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, यह पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं जिनका यूज हम रेक्टिफायर के साथ करते हैं, तब है एसी मेजरमेंट के काम में आते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स आर टू टाइप, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड करंट ट्रांसफॉर्मर। इन शॉर्ट वी से पीटी potential transformer, CT or current transformer. First one is potential transformer.
potential transformer are connected parallelly. The primary winding of potential transformer is connected parallelly to the supply system, and secondary winding of potential transformer is connected to the voltmeter for measuring the higher level voltage using low level voltmeter. हम लो लेवल के वोल्टमीटर से हायर रेंज के वोल्टेज को मेजर करते हैं यूजिंग पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. एक्चुअली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इट स्टेप डाउन और change the voltage level from high level to low level. We measure the low level voltage and using transformation ratio formula we calculate the higher level voltage. Same as current transformer CT, but here the primary winding is connected with series to the high level current circuit, and secondary winding are connected with ammeter. This is the step up transformer. It provides the low level voltage to high level voltage, but also it provides the high level current to low level current. Here we calculate the low level current and using transformation ratio formula we calculate the high level current. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से हम हाई लेवल के वोल्टेज को लो लेवल के वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद मेजर करते हैं और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की हेल्प से उसे कैलकुलेट कर लेते हैं. सीटी में करंट ट्रांसफार्मर में हम हाई लेवल के करंट को लो लेवल के करंट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे लो लेवल के करंट को मेजर करते हैं. फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला और टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, इनकी हेल्प से हम हाई रेंज के करंट को कैलकुलेट करते हैं. Thank you for watching this video.